38400, right? Homework sum. Your textbook. Last one. Last one. Answer to you. कुछ किया नहीं। हाँ ये ठीक है अरे सच्ची है। हाँ ठीक है इसको भी पूछिए क्यों बोलेगा कुछ नहीं किया था मैं किया क्या बात है? तो तू नहीं किया तो भी दो दिलाता है Okay, चलो. All of you take sum number 25. Oh, sorry. Sorry. क्या हो गया? Fifth sum. Okay. See, 25th में क्या दिया है? चंदा and बिजली. Our partners sharing profits and losses equally. So, sorry, what's your old ratio? 1:2. Old ratio is 1:1. Is that right? On 30th June 2016, their balance sheet was as follows. 30th June का अगर वो लोग ने balance sheet दिया है, तो हम लोग कब का बनाएंगे? 1st July. बराबर? 1 day after that. Sorry. Now, see the adjustments. सबसे पहला step, start with what? Opening balance. 5 steps you remember? First step is opening balance. Start with opening balance. Sorry. ओपनिंग है कैश है कि बैंक है देख लेना. बैंक है मिला. सो बैंक का बैलेंस लिख दो. बैंक का बैलेंस इज कितना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक?
$20,000. Can you all see that? Mila? 20,000 is opening balance in bank. Okay. 20,000 is opening balance in bank account. और कैपिटल में क्या है? गुडविल तो है नहीं. बाय बैलेंस BD. Capital is 60/40. First step is nothing but opening balance of bank and opening balance of capital. Correct? Alright? फिर 3:4 कर ले. एक मिनट. ओल्ड रेशियो इक्वल है. उसके बाद what's your second step? रिजर्व. जनरल रिजर्व दिया. किसको जाएगा? Which side? 10,000. 5,000. Credit side. So buy general reserve account. Which ratio? Old ratio. What is old ratio? Equal. 1:1. 10,000 would be what? 5 and 5. बराबर है? Step 1 is balance. Step 2 is reserves. Are there any losses? No losses. No. What is step 3? Capital. New partners capital. Check about new partners capital. How much? 50. Can you see that? He will bring 50,000 as his capital for 1/4 share in the profits, which he will acquire from Chanda and Bijli in the ratio of 3:2. मतलब what is that 3:2? Sacrifice. So चंदा और बिजली से ये कितने हिस्से में आ रहा है? 3:2 में मिल रहा है. समझ में आया? तो is old ratio same as sacrifice ratio in this sum? No. OR अलग है और SR अलग है. याद रखना. क्यों काम आता है SR? NR और गुडविल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल. ओके. SR यूज करना है. सो कैपिटल की एंट्री क्या होगी आपकी? Bank to capital. बैंक टू कैपिटल. बैंक टू बादल कैपिटल. कितना लाया कैपिटल भैया ने? 50. बैंक टू बादल कैपिटल और बादल कैपिटल में बाय बैंक. बादल में कैसा बाय बादल? बहुत सारा बादल हो गया. बैंक में टू बादल, बादल में बाय बैंक. सॉर्टेड. व्हाट्स योर फोर्थ स्टेप? Goodwill. Check and tell me which case. 1 or 2? Second. Very good. Second case. Why? Withdraw. दिख रहा है? Old partners decided to withdraw goodwill. So how many entries? 2 or 3? 3 entries. 3 entries. 3 entries. What are the 3 entries? Tanay? First. Bank to goodwill. Second में Old partners to Goodwill. पहला वाला बैंक टू गुडविल. दूसरा वाला old partners. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. और तीसरा वाला old partners to cash. Is that clear? Withdrawal kind. Which ratio do we need over here? Sacrifice. Do we know the amount of goodwill? Check. Yes. कितना ला रहा है गुडविल का? दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? 3:2 के बाद दिया हुआ है. 20,000 for his share of goodwill. मिला? So first entry बैंक टू गुडविल. 3 एंट्रीज है तो कितने पोस्टिंग्स आएंगे? 6 पोस्टिंग्स आएंगे. So बैंक में टू गुडविल. बैंक में टू गुडविल और गुडविल में बाय बैंक. बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक. 20,000. बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक. और इज द सेकेंड एंट्री? Goodwill to old partners capital. बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक. फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. तो गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स कौन है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स में टू चंदा टू बिजली. बराबर है?
Which ratio is 3:2. sacrifice? Sacrifice ratio is 3:2. It's not 1:1. They have given he is acquiring it from Chanda and Bijli as 3:2. So 3:2 किया तो I think you get 12,000. 12 and 8. अच्छा गुडविल में 2 कैपिटल, सो कैपिटल में आएगा बाय गुडविल, कैपिटल में आएगा बाय गुडविल, दैट इज 12 and 8. Is that right? Comfortable? Clear? और एक एंट्री आएगी ना, विड्रॉ भी करके लेके जा रहे घर पे पार्टी के लिए, तो क्या होगी एंट्री? टू बैंक ओल्ड पार्टनर टू बैंक, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में टू बैंक पे ऑफ कर दिया आपने, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में टू बैंक घर पे लेके गए, विड्रॉ कर लिया, कितना? पूरा आधा, पूरा मतलब 12 और 8 जलसा। ओल्ड पार्टनर में टू बैंक, तो बैंक में बाय ओल्ड पार्टनर, सो बाय चंदा एंड बाय बिजली। चंदा को मिले 12, बैंक से गया 12, चंदा को मिले 8, बैंक से गया 8। Is that clear? So 3 entries, 6 posting, बैंक में 2 गुडविल, गुडविल में बाय बैंक, गुडविल में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल, एंड कैपिटल में 2 बैंक, बैंक में बाय कैपिटल। Sorted? Moving ahead, reval पे जाते हैं। The first point was capital, second point was goodwill, third was also goodwill, withdrawn. Second goodwill हो गया। उसके बाद third point, the value of plant and machinery shall be decreased by 20%. Gain or loss? Loss. So to plant and machinery कितना था? 50,000. का 20%? 10,000. And second effect in the balance sheet, plant and machine 50 था, less revalued 10,000, 50 minus 10, 40. प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो, बराबर है। नया पार्टनर आने से पहले ये सब चेंजेस कर रहे हो, सो दैट नए पार्टनर को इसमें कुछ ना मिले। सेकंड वन प्लांट के बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक वेयर अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अंडर वैल्यूड मतलब अभी क्या करना है? बढ़ाना है। तो गेन हो गया कि लॉस हो गया? गेन हो गया। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 5,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक आपका 45 था, 45 था, अब कितना हो गया? अंडर वैल्यूड था तो हमने बढ़ा दिया। याद है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड उल्टा कर देने का, अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा देने का, ओवर वैल्यूड है तो घटा देने का, बराबर। देन हो गया यहां तक। Point number 5 is very important. See point number 5. 50% of the creditors were paid 18,000 in full settlement. 50% of the creditors were paid 18,000 in full settlement. मुझे पहले देख के बताओ क्रेडिटर्स कितना दिया आपको पहले? 40,000। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, बराबर है। उसमें से पूरे को नहीं पे ऑफ किया, 50-50 मतलब कितना होता है? 20,000, बराबर है। हाफ द क्रेडिटर, 50% क्रेडिटर को आपने क्या किया? पे ऑफ कर दिया, पैसा दे दिया। कुछ टाइम आया होगा रिवैल्यूएशन करते वक्त, किसी का ड्यू डेट आ गया होगा तो आपने उसको पैसा देके चुका दिया, सेटल कर दिया। लेकिन पूरे क्रेडिटर्स को नहीं, हाफ 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वे सेटल्ड फॉर व्हाट अमाउंट? 18,000। तो इसको आपने कितना चुकाया? 18 चुकाया। तो 2,000 से क्रेडिटर बढ़ा कि घटा? घटा। ये डिस्काउंट होगा, ये फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। तो पहले क्या करो, 20 का क्रेडिटर को बनाओ 18,
20 का क्रेडिटर को मेक इट 18, क्योंकि आपने 20 तो नहीं चुकाया, आपने 18 ही चुकाया, तो 2 का फायदा है, तो फायदा है तो गेन रिवाइल क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स कितना 2000 बाय क्रेडिटर्स 2000। 20 का हमने 18 बना दिया, 20 का क्रेडिटर्स वी मेड 18, यहां तक क्लियर। और फिर 18 को पे ऑफ किया, लायबिलिटी चुकाया। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग क्रेडिटर्स? क्रेडिटर टू कैश, लायबिलिटी टू कैश। कोई भी लायबिलिटी आप चुका दे तो क्या एंट्री होती है? लायबिलिटी टू कैश। तो क्रेडिटर टू कैश। बीपी को ऑनर किया तो बीपी टू कैश, लोन चुकाया तो लोन टू कैश, क्रेडिटर को चुकाया तो क्रेडिटर टू कैश। आर यू गेटिंग दैट? कैपिटल को चुकाया तो कैपिटल टू कैश, जो लायबिलिटी चुका है उसको टू कैश। तो यहां पर क्रेडिटर टू कैश करना है। क्या करना है? क्रेडिटर टू कैश, क्योंकि पे ऑफ किया। खाली रीवैल्यू किया होता ना तो मैं इधर 2 करके इधर 18 दिखा देता, 18 और बाकी का 20, 38। बट ऐसा हुआ नहीं। क्या किया? पे ऑफ कर दिया। द वर्ड पेड ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज गिवन ओवर देयर? पेड। तो चुका दिया, बाकी को रखा नहीं है, चुका दिया। तो 18,000 को चुकाने की एंट्री क्या है? क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर में टू कैश, क्रेडिटर तो यानी कैश में, मतलब बैंक में बाय क्रेडिट, बैंक में बाय क्रेडिटर कितना 18। अब मुझे एक बात बताओ, आधे क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं, तो बाकी आधे का क्या? इसका क्या? ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी एज इट इज। ये क्रेडिटर्स एज इट इज आपका 20,000 दिखेगा। ये कौन सा 20 है? जो सेटल हो चुका है वो है कि जो नहीं हुआ? जो सेटल नहीं हुआ, जिसको देना बाकी है वो तो लायबिलिटी में रहेगा, जिसको दे दिया वो तो पेड ऑफ, गॉन। So what is the entry for liability paid off? Cash to cash, Creditor to cash. Any liability to cash. Any liability to cash. Is this clear? कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे एसेट टेकन ओवर हुआ था, याद है? मोटर कार टेक ओवर हुआ था, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हुआ था। टेक ओवर का मतलब ड्रॉइंग्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? लायबिलिटी पेड ऑफ हो रहा है। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, 4 चीजें आ सकती हैं इसमें। क्या क्या आ सकती हैं? एसेट टेक ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, ये 2 आ सकते हैं। या तो लायबिलिटी पेड ऑफ एंड एसेट सोल्ड ऑफ। एसेट सोल्ड ऑफ। तो लायबिलिटी पेड ऑफ की एंट्री क्या है? लायबिलिटी चुका है, लायबिलिटी टू कैश। एसेट बेचने की क्या एंट्री होगी? कैश टू एसेट। अगर आया तो यही 4 आ सकते हैं घूम फिर के। क्या 4 आएंगे? एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड ऑफ, एसेट सोल्ड ऑफ। तो सब में पढ़ना है। पेड ऑफ, सोल्ड ऑफ कुछ दिया है क्या? अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक। ये 5th वाला समझो, एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स का 50% ऑफ द क्रेडिटर्स पेड ऑफ। आधे ही चुका है, आधे ही पे ऑफ किया, आधे पड़े हुए अभी। 6th वाला देखो, अभी सिमिलर है। आप बताओ क्या करोगे? बीपी ऑफ 3,000 आर रिटायर्ड फॉर 2,800। ऊपर देखो बीपी कितना है? बीपी कितना है? बीपी 5,000 का है ना। एंड व्हाट इज बीपी? यू नो, एसेट और लायबिलिटी। बीपी इज बिल्स पेबल। बहुत बढ़िया। बीपी इज बिल्स पेबल। बीपी इज बिल्स पेबल। इट्स अ लायबिलिटी ऑफ 5,000 एंड उधर पढ़ो स्टेटमेंट में क्या दिया? बिल्स पेबल ऑफ 3,000 वेयर रिटायर्ड फॉर 2,800। तो 3,000 का बीपी को आपने कितने में रिटायर किया? 2,800, बराबर है? Yes. तो ये रिबेट हो गया। रिबेट बोले तो डिस्काउंट। तो पहले क्या करने का? 3,000 का बीपी को बनाने का 2,800। बढ़ा कि घटा? लायबिलिटी घटा, तो गेन और लॉस? ये। तो इधर लिख देने का बाय बिल्स पेबल। बाय बिल्स पेबल कितना? 200। बाय बिल्स पेबल 200। ये गेन हो गया। अभी आगे बढ़ो। इसको क्या किया? रखा है कि चुका दिया? रिटायर्ड मतलब चुका दिया। बीपी टू कैश टू रिबेट। याद आ रहा है? सो व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग दिस 2,800? बीपी टू कैश। जैसे क्रेडिटर टू कैश मारा वैसे बीपी टू कैश। सो बीपी में टू कैश, कैश में कैश मतलब बैंक है यहाँ पे।
बैंक में बाय बिल्स पेबल कितना 28 2800 चुका दिया. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? ये तो एज इट इज आएगा बैलेंस शीट में. रिमेनिंग बिल्स पेबल विल बी इन द बैलेंस शीट. डिट्टो सेम था Yes. क्रेडिटर और बीपी का एग्जांपल में, खाली उसमें आधा चुकाया था, इसमें 5 में से 3 का चुका. समझा? लायबिलिटी पेड ऑफ का एंट्री, लायबिलिटी टू कैश, ये करना भूलना मत. ये पेड ऑफ हो चुका है तो ये बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है, जो बचा हुआ है वो दिखे. अब आगे बढ़े. ऑल पार्टनर्स कैपिटल आर शुड बी केप्ट इन पर्टिकुलर नहीं है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑल पार्टनर कैपिटल आर टू बी केप्ट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन पर्टिकुलर कट करो, आर टू बी केप्ट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑल पार्टनर कैपिटल आर टू बी केप्ट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड पेमेंट. जर्नल एंट्री अभी नहीं है. ये क्या है? कौन सा एडजस्टमेंट? Proportional. विच रेशियो डू यू वांट? न्यू रेशियो. ऑल ऑफ यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. Ratio. न्यू रेशियो ढूंढो सब लोग. 1:2. OR क्या है? 1/2. SR, 3/2. एक्चुअल SR, एक्चुअल SR ढूंढो. एक्चुअल SR इज शेयर इनटू, कितना है शेयर उसका? 1/4 into what? 3/2 and 1/4 into 2/2. 2/20. एंड फिर कैलकुलेट करना है NR. NR इज व्हाट? OR minus SR. OR माइनस SR. सो चंदा, बिजली, बादल. 3/, ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2 minus 3/20. LCM is 20. 10 minus 3, 7/20. And 1/2 minus 2/20. 10 minus 2, 8/20. 7:8:5. 5. 7:8:5. बराबर है? विच वही है ना, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो 7:8:5 आ रहा है. बराबर है? तो आज के बाद इनको कैपिटल्स कौन से रेशियो में रखना है? 7:8:5. सो दैट किसी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं, किसी का एक्स्ट्रा नुकसान नहीं. तो प्रपोर्शनेट कैपिटल का नोट आई एम मेकिंग ओवर हियर. ओपनिंग नोट नंबर 6. प्रपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट. कितने पार्टनर्स हैं? 3.